Yes friends, so ये नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आई मीन इन कंटिन्यूएशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, लगभग 8 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इन कंटिन्यूएशन ऑफ परसेंटेज में लिए हुए। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज के बारे में बेसिक डेफिनेशन कहाँ से लिया गया वर्ड, ये कैसे है क्या है, वो हमने पहले डिफाइन कर रखा है, सिर्फ कंटिन्यूएशन। अब ये क्वेश्चन कुछ थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं जिससे कि the basics are more further clarified, okay, or further clarified because of that I have taken these questions. So these questions जो कि difficult level के हैं, कई different competitive examination से लिए गए हैं, जिससे कि क्योंकि students की queries हैं, सभी इन queries को मैं हमेशा नोट करता रहता हूँ। I have number of diaries, okay, and those diaries whenever students ask me in the class, I note down that question in my diary, okay, or some questions which are clarifying the points I have taken from my notes also, okay, तो ये questions वो हैं। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, okay, ये इन क्लासेस के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ, competitive examinations के लिए at the moment I am not teaching, but I have vast experience of 3 decades of teaching for competitive examination, for IAS, for PCS, for bank provisioning officers, AAOs, assistant accountant officers, GRE, GMAT set, number of students, thousands of students I have sent. Not I have sent, but the students have gone from my studies to USA, to UK, to England, to Germany, to Australia, to France. Australia, number of students, even New Zealand, okay, number of other students have gone to different, so number of NRIs were coming to India, then they were studying in India, and then we were taking classes in the evening classes, okay, for competitive examinations, in the daytime for management classes, engineering classes in daytime, which are regular classes, and in the evening classes for part-time classes, we were taking in some of the institutes, very famous some institutes which were sending students more in number to USA, UK, okay, and some of them Canada, to Australia, to New Zealand, as well as a number of other countries. I'll tell you about a number of experience of mine, okay, so that I have done in my past life, okay, not my past life means previous life, I'll not say past life, but not at the moment. I'm not taking class in the evening, but I have a lot of experience of teaching for competitive examinations. So all kinds of mathematics. Nowadays, I'm taking classes for management students like operations and research. Okay, then I'll take those topics also because students have requested me. तो उन क्वेश्चंस को लेने से पहले अभी मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए ले रहा हूँ ये मैथमेटिक्स, जिससे कि जो बेसिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के बारे में कभी भी कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, सर आप ऑनलाइन आ जाइए, तो दैट हम कैन जिससे कि हमें वो आपके साथ में जो रिलेशंस पहले थे वो अभी भी थोड़ा सा रिवाइज रिमाइंड कर सके हम लोग, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन आने की उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैं आ गया। और बाकी स्टूडेंट जो प्रेजेंट वाले वो तो आई एम नॉट having their names at the moment, but they are also contacting me, okay, so their queries are taken here. Now come to point. अच्छा, ये क्वेश्चंस करने से पहले जैसे हमने बताया कि बेसिक क्वेश्चंस हैं सभी जो क्लैरिफाई करते हैं टॉपिक को फर्दर, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से क्लैरिफाई करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को फर्दर। वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3 papers are set in an examination and the maximum marks awarded for them were in the ratios 1:2:2, okay, 1:2:2, ये उनको रेशियो दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स 3 पेपर्स के हैं, 3 पेपर्स के, 3 papers are set in an examination and the maximum marks awarded for those papers were in the ratios 1:2:2. If a candidate obtains 50% marks in the first paper, 60% marks in the second paper, and 65% marks in the third paper, what percent did he obtain in the aggregate? अब बताइए कि एग्रीगेट में उसके मार्क्स कितने थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग से उसने इतने ऑब्टेन किए हैं, बताइए एग्रीगेट मार्क्स कितने आए। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स कोई भी ले लेते हैं, जैसे रेशो के हिसाब से जो रेशो दिया हुआ है 1:2:3 रेशोज का हम सम करते हैं, फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 1 पॉइंट, जैसे यहाँ 1+2+2 5 आता है, तो 5 सम ऑफ द रेशियोज है वो नीचे रखते हैं
और जिस सब्जेक्ट का निकालना है मैक्सिमम मार्क्स तो 1 अपॉन, जैसे पहले का 1 रेशो तो 1/5, 2/5, 2/5, ऐसे करके हम मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। कोई मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं, क्योंकि ये 5 है सम, तो 5 का ही मल्टीपल निकाल लेते हैं। जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 टोटल मार्क्स आ गए पांचों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स के। उन 500 मार्क्स में से ये जो रेशो में है, उस रेशो में पेपर्स की हम एग्रीगेट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखता हूँ, इससे जल्दी हो जाएगी। गिवन ओके 3 पेपर्स या गिवन हियर, 3 पेपर्स आर सेट in an examination okay, and maximum marks allotted and maximum marks allotted to 3 papers were in the ratio. Okay, allotted were in the ratio 1:2:2, right? अब सभी सब्जेक्ट से सेपरेट मार्क्स हैं एंड a candidate obtained right 50% marks in first paper, 60% marks in second paper, that is और 65% marks in third paper। ये दिया हुआ है आपको in third paper। तो फाइंड करिए what is the aggregate marks। to find here aggregate marks okay in the 3 papers, what percent of aggregate marks, this is percentage of aggregate marks in all the 3 papers, what percent did he obtain in the aggregate, okay, percent of aggregate marks in 3 papers। तीनों पेपर के हमें टोटल एग्रीगेट मार्क्स निकालने के, तीनों पेपर्स का एवरेज क्या था, what is the percentage obtained by him in all the 3 papers। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहले सम ऑफ द रेशो क्या है, सम ऑफ द ratios equal to 1 + 2 + 2 equal to 5। तो इसलिए हम let aggregate total marks allotted to the 3 papers equal to 500। वो हमने क्यों किया, 5 था, ये 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, तीनों पेपर्स के अलग अलग मार्क्स निकाल लेते हैं भाई। देयरफॉर टोटल मार्क्स और एग्रीगेट मार्क्स इन फर्स्ट पेपर और ऑफ फर्स्ट पेपर, दिस इज ऑफ फर्स्ट पेपर। फिर निकालते हैं रेशियो का जो ऊपर वाला पॉइंट है 1 डिवाइड बाई सम ऑफ द टोटल, तो हमें रेशियो नीचे डिनोमिनेटर रखते हैं 1/5 into 500, इसके तो 100 मार्क्स आ गए। पहले पेपर के टोटल मार्क्स 100 मार्क्स हैं। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड पेपर में एंड टोटल मार्क्स और एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑफ सेकंड पेपर इन सेकंड पेपर इक्वल टू 2/5 into 500 इक्वल टू ये 200 हो गए, 200 हो गए। सिमिलरली थर्ड पेपर में 200 होंगे एंड सिमिलरली लेट मी राइट, सिमिलरली इन थर्ड पेपर एग्रीगेट मार्क्स कितने होंगे इन थर्ड पेपर, एग्रीगेट मार्क्स
एग्रीगेट मार्क्स इक्वल टू 2/5 इंटू 500 इक्वल टू 200, ये भी 200 आ गए, ठीक है ना। इस तरह से तीनों पेपर्स के एग्रीगेट मार्क्स आ गए। अब इसमें से कितने परसेंट मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, क्योंकि वो कह रहा 50% पहले पेपर में आ गए थे, दूसरे में 60%, थर्ड पेपर में इतनी थी। तीनों को सम करेंगे और इस टोटल मार्क्स जो नीचे हैं 500 उससे डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए देयरफॉर कितने परसेंटेज मार्क्स उसने लिए हर पेपर में वो निकालते हैं। देयरफॉर द कैंडिडेट scores marks in each paper as follows। तीनों पेपर में उसने 50% ऑफ फर्स्ट 50% मार्क्स देता है पहले पेपर में, फर्स्ट 50%। इसमें एग्रीगेट मार्क्स 100 थे ऑफ 100, ये 50 आएगा क्योंकि 50/100 इंटू 100, ये तो भाई 50 ही आ गया। दूसरे पेपर में इन सेकंड पेपर, चलो मैं सेकंड पेपर का निकालता हूँ। ओके, ये तो फर्स्ट पेपर आ गया था। इन सेकंड पेपर his marks obtained in second paper, marks obtained equal to 60% of 200। 60% of 200 हुआ ना, तो 60% ऑप्टेन करता है तो 2 0 कैंसिल आउट, 120 आ गया भाई, 62 या 120। एंड इन थर्ड पेपर is scoring marks 65% होते हैं। थर्ड पेपर score equal to 65% of 200, क्योंकि थर्ड वाले पेपर का एग्रीगेट मार्क्स 200 है, उसका 65% निकालना है क्योंकि उतना उसने स्कोर किया इस थर्ड पेपर में, तो उसके टोटल मार्क्स थर्ड पेपर कितने आता है, हो गया 65/100 इंटू 200, तो 2 इंटू 65 130 आ जाता है। 130 ये थर्ड पेपर में मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स तीनों पेपर कितने हो गए, टोटल मार्क्स therefore total marks obtained in 3 papers, in the 3 papers of 3, let me take 3 papers, in 3 papers इक्वल टू फर्स्ट में 50 थे, दूसरे में 120 थे, थर्ड में 130, तीनों को ऐड किया 50, ओके 180 प्लस 120 300, तो 300 टोटल मार्क्स तीनों पेपर्स के उसने ऑब्टेन किए। परसेंट निकाल के हमने देखा इतने मार्क्स उसने तीनों पेपर्स के टोटल मार्क्स इतने ऑब्टेन किए। तो आउट ऑफ हाउ मच 500 परसेंट कितना हुआ, देयरफॉर 300 he obtains 300 marks out of 500 एग्रीगेट। हमने क्योंकि एग्रीगेट 500 लिया था, टोटल 500 के एग्रीगेट मार्क्स में से 300 आते हैं। therefore percentage of aggregate marks, percentage of aggregate marks कितना आएगा, वो जाएगा भाई 300/500 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लेते हैं, 2 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 6 से 30, 60% ओवरऑल 60% मार्क्स उसके आ जाते हैं। 60% एग्रीगेट मार्क्स हुए, ठीक है, तीनों पेपर्स के, ये आंसर है। 60% इज द ओवरऑल average of marks or rate of marks, okay, his percentage of marks in all the 3 papers aggregate together is 60%, okay, so this is the answer here। question number 1 complete हो गया भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक सेकंड पेपर।
पेज पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है एक कैंडिडेट scored 20% marks in an examination and failed by 10 marks. Okay, another scored 42% marks and get 1 mark more than the marks required to pass the examination. Determine the maximum number of marks and the percentage necessary to pass the examination. ठीक है, अब देखते हैं नेसेसरी कितने मार्क्स चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, उसका एवरेज परसेंटेज मार्क क्या होगा, परसेंटेज कितने ऑप्टेन करने चाहिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स एंड द परसेंटेज नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन। परसेंटेज भी निकालनी है, मैक्सिमम मार्क्स भी निकालने कितने चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। अब वो कहता है 20% मार्क्स स्कोर किया एक पर्सन ने, लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, 10 मार्क्स उससे कम रह गए, 20% मार्क्स ऑप्टेन करता है तो ठीक है। अंदर कहता है कि 42% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए दूसरे वाले ने, लेकिन 1 मार्क्स उसका ज्यादा आ गया, पासिंग मार्क्स जितने भी थे उससे 1 मार्क ज्यादा आ गया। अब हम देखते हैं कि दोनों की परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, और फिर जो मार्क्स का गैप है, क्योंकि 10 पीछे रह जाता है और 1 मार्क्स आगे जाता है पासिंग मार्क्स से, तो 10 + 1 11, तो ये जो 11 मार्क्स का गैप है, आई मीन द डिफरेंस ऑफ मार्क्स इज 11 and difference of percentage is 42 में से 20 माइनस किया 22%, तो 22% of total marks is equal to 11। ये तो कह रहा है डिफरेंस ऑफ द 2 परसेंटेज कितना है भाई, तो हमने देखा टोटल मार्क्स का जो हम परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि 40% 42% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए दूसरे वाले बच्चे ने, और पहले वाले कैंडिडेट ने 20% मार्क्स ऑब्टेन किए, इसका मतलब दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस फॉर 22 हुआ। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दिया है। Given a candidate is scored or scores 20% marks but fails by 10 marks। इसका मतलब वो 10 मार्क्स उसको कम मिलते हैं, 20% ऑब्टेन करता है लेकिन उसके 10 मार्क्स कम रहते हैं टोटल। Another scores 42% marks and gets 42% and gets 1 mark more than the required aggregate of marks, the required passing marks. Okay, then the marks required to pass. Okay, then the required passing marks. This is the point. To find क्या करना है भाई, देखो यहाँ हमें फाइंड करना है नंबर 1 परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स एंड एग्रीगेट ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं, रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स कितने हुए, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, या टू डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स मैक्सिमम determine marks maximum marks to pass the एग्जाम। टोटल मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो निकालने हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम मार्क्स इज व्हाट, टू पास द एग्जाम, और वी कैन से द टोटल मार्क्स कितने थे पेपर्स के, उसमें से कितने परसेंट पर पास होता है। हम ये कहते हैं नॉट पास बट टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। You have to find to determine maximum marks. कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है भाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू पास द एग्जाम, एंड व्हाट इज द determine the maximum number of marks and the percentage necessary to pass the examination. Percentage necessary to pass the exam, ओके। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सबसे पहली बात कहता है कि भाई
जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ परसेंटेज निकालिए, डिफरेंस ऑफ मास कितना होगा, पहले आप कहते हैं द डिफरेंस इन द परसेंटेज, द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, percentage of marks of both the candidates, ठीक है जी। दोनों कैंडिडेट्स के मार्क्स का परसेंट कितना हो, 42% में से माइनस किया 20%, कितना आ गया 22%। चलिए सही हो गया। एंड गैप, वी कैन सी गैप और डिफरेंस, एंड let me take difference, and the difference of marks equal to 10 plus 1। तो भाई पासिंग मार्क्स से एक मार्क्स ज्यादा आता है दूसरे वाले का, और उसका पहले वाले का 10 मार्क्स कम रह जाते थे। ये दोनों को सम करेंगे, 10 plus 1 11 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 22% ऑफ टोटल मार्क्स, दिस इंप्लाइज दैट 22% of total marks is equal to 11। Try to understand। ये जो 22% ही तो 11 के बराबर है। गैप जो दोनों का परसेंटेज का गैप था, अपना लिख रहा है कि परसेंटेज का गैप इतना था, लेकिन मार्क्स का डिफरेंस इतना था, तो वो मार्क्स की इक्विवेलेंट होगा। तो 22% ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू 11। इसका मतलब यहाँ से हम टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। Therefore total marks or aggregate marks, therefore total marks in the exam is equal to 22% of total marks. Total marks equal to 11 upon 22%. That means 11 upon 22 upon 100, तो 100 will come in the numerator। ये आ गया ऊपर, कितने मार्क्स आ गए भाई, 11 से 2 times 11 100 times 50 मार्क्स आ गए, क्योंकि 100 अपॉन 2। इसका मतलब टोटल एग्रीगेट मार्क्स 50 चाहिए। 50 मार्क्स का पेपर था, तो पेपर पास और 50 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितने हुए थे वो देखिए। तो अभी देख रहे हैं आप, या तो हम 42% निकाल लें या 20% इसका निकाल के 50 का उसमें 10 मार्क्स ऐड करते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स पहला वाला जो कैंडिडेट था उसने 20% मार्क्स ऑब्टेन किए थे टोटल मार्क्स के, उसका 10 मार्क्स कम रह जाते हैं, तो हम 10 मार्क्स उसमें ऐड कर देंगे 20% इसका निकाल के 50 का। Therefore passing percentage of marks equal to 20% of 50 plus 10। Try to understand। या आप कह सकते थे कि 42% निकालते 50 का, और उसमें से 1 माइनस करते थे, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा मार्क्स था। 42% मार्क्स 50 का निकालें तो, बट 20% मार्क्स निकालिए प्लस 10 कम रह गए तो वो ऐड कर दीजिए, ये टोटल परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। कितने 20% ऑफ कितने मार्क्स हैं, पहले तो हम पासिंग मार्क्स निकाल लें। ये जैसे पासिंग परसेंटेज, नॉट पासिंग परसेंट बट पासिंग मार्क्स निकाल लें, तो परसेंटेज इसको निकाल लें, फिर परसेंटेज कितनी होगी वो, तो हमने पहले परसेंटेज पासिंग मार्क्स निकाल लें, नॉट परसेंटेज। तो ये 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ 50 प्लस 10, तो ये 52 जा तो 10 प्लस 10 20 आ गई। 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, है ना, 20 मार्क्स है, ये परसेंटेज नहीं है। तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 वो निकालना है। Therefore परसेंटेज मार्क्स, ये सेकंड पास है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। Therefore 20 मार्क्स आर पासिंग marks out of 50, therefore 20 is what percent, let this is x percent of 50। मान लेते हैं कि x percent of 50 equal to 20, ठीक है ना, x percent मान लेते, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। अब 20 is what percent of 50, 20 is what percent of 50, मान लो x percent मान लेते हैं, x upon 100 into 50, x percent मतलब x upon 100, क्योंकि हम हमेशा परसेंट का मतलब 1 upon 100 मानते थे कि x upon 100,
ठीक है ना, इंटू 50। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई यहाँ से 52 जाओ टू x इक्वल टू 40, तो 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स में, वो 40% मार्क्स पासिंग, x इक्वल टू 40%, क्योंकि आपने परसेंट निकालनी है। ये x इक्वल टू 40% मार्क्स पर पास हो रहा है कैंडिडेट। 40% मार्क्स अगर हम नेचुरली 50 का निकालते हैं तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स आए, ठीक है। तो x इज 40% मार्क्स, दिस इज द आंसर। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स पासिंग मार्क्स इज 40% एंड पासिंग मार्क्स आर 20 एंड टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इज 50 आउट ऑफ 50 का पेपर है। चलिए सर, ये आंसर हुआ सेकंड क्वेश्चन का। तो 40% मार्क्स चाहिए कैंडिडेट को, पासिंग मार्क्स है ये, पासिंग परसेंटेज है, सॉरी 40% एंड मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर 20 एंड टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी काफी डार्क है। ओके, क्वेश्चन 3 what is given to us, let me write very much. Question 3 कहता है कि the total population of a country is 294 million, क्योंकि 10 is power 6 million बना देता है, 294 million, out of which 150 millions are males and the rest are females. Okay, out of every 1000 males 98 can read and write, but only 5.3% of the total population can do so. मीन्स 5.3% टोटल पॉपुलेशन की पर लिटरेसी रेट है, ठीक है। लिटरेसी मतलब पढ़ने लिखने की रेट है, बट ओनली 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कैन डू सो। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ वीमेन इन द होल पॉपुलेशन कैन डू सो, मीन्स हाउ व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ये निकालना है, ठीक है ना। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ वीमेन इन द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन रीड एंड राइट, दैट इज द पॉइंट। देखिए क्या गिवन है, population, we are given here population of a country is equal to 294 into 10 raised power 6, okay, ये means 294 million ये दिया हुआ है, and males out of which males is equal to 150 million. 150 million means 6 zeros. 150 million. ये 150 into 10 raised power 6 million. Square split is 150 into 10 raised power 6. ये males की population है, males का नंबर ये है, out of which males are equal to this. Okay. तो females कितनी होंगी, इसको माइनस कर देंगे, तो अभी वो निकालिए, टू फाइंड क्या करना है, और सॉरी अभी परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। और फर्दर इट सेज दैट आउट ऑफ 1000 मेल्स 98 आर लिटरेट, मैं लिख रहा हूँ, चलिए लिटरेट का मतलब है रीड एंड राइट कर सकते हैं, आर लिटरेट। फाइंड एंड सॉरी ये भी दिया हुआ कि 5.3% एंड 5.3% of total population are illiterate or can read and write. Okay, to find करिए percentage of women who are literate. Literate means who can read and write. Got the point? This is the percentage of women we have to find out. वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहली बात कहते हैं भाई, टोटल पॉपुलेशन हम women का निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो आप कहेंगे नंबर ऑफ females